Yeah, good morning everyone. Can you hear? Morning, sir. Yes, sir. Any questions is based on yesterday class? Like, so one information is that I will be taking leave next week. So, Sir, we have learned about the calculation part of regression. हाँ तो Sorry. अभी मैं आता हूँ उस पर रुक जाओ. So one information is that I will be on some days off. So I will not be repeating subjects like for IB and U. I will not repeat. So I will take both of you as one class and I will keep on sharing the recording. Okay? So by default, today you are getting ahead. So therefore, you might not be able to, you might be always having advantage. But if somehow you get behind, so you can see the recording and ask me questions. So you can ask me questions directly, but I will not be going in detail. Understood? Yes, no, hello. Sir, can there be combined class with the timing can be mutual? आई डोंट नो यार, अब वो तुम आई दैट इज़ द बेस्ट थिंग कैन पॉसिबल. उसके लिए फिर तुम लोगों को देखना पड़ेगा आपस में बैठ के. अगर वो हो सकता है तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है. वो तुम लोग देख लो. Yes, sir. So, यू कैन फिगर आउट. दैट विल बी ग्रेट. sir, Shivansh or CR will let you know. हाँ ठीक है. समबडी वाज आस्किंग, कुछ कह रहे थे कैलकुलेशन के बारे में. समबडी वाज आस्किंग एंड आई स्टॉप्ड इन बिटवीन. या गो अहेड प्लीज. हेलो. somebody was asking question. So about regression, I don't know. Somebody was said I was was asking asking. question and then I stopped him. के भी रुक जाओ. हाँ बोलो. Yeah, yes, sir. We have learned about the calculation part of the regression, but how can we do? How can we apply it practically? हाँ ठीक है. अभी रिग्रेशन स्टार्ट हुआ था, अभी ख़त्म नहीं हुआ है. सो दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट ऑन पेपर विच इज जनरली आस्क्ड टू यू. ठीक है. नाउ व्हेन यू गो, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है. when you go and do it and interpret it practically, again same thing as mean median mode. Again it is possible that you are drawing a sample from a population using some parameters and then again you do a regression. तो वहाँ पर भी population और sample का concept आता है. So this concept is just on the population. ठीक है. Here we are not talking of any inference. कोई p value अभी नहीं निकाली है. ठीक है. Can you see this? There is no p value. There is only coefficient value. Okay. So this is assumption that the population is what we are analyzing. ठीक है. Is that fine? Hello. Yes, sir. Now comes the tricky part. So called tricky part. Let's do it here. Let's go here. Can you see the screen? Yes, sir. We go to data, we go to data analysis. How do I remove this ribbon? We go to data analysis, we go for regression, we go for, अरे यार बीच बीच में मत आया करो. Okay, so now input range y, this is input range y. We have, let's do it without labels. ठीक है. तो आपको थोड़ा पता भी लगेगा. Every time now, this time I am not collecting. The first row is not label, first row is not having any data or labels, so I have not clicked labels. Constant is not, constant is 0. ये बहुत ही बड़ी चीज़ है. I will explain about this when do we talk about this. Okay, now we have a confidence interval. Why confidence interval? Because again I am doing the sample population thing. I will get the output itself in this sheet itself. So मैं अलग से sheet में नहीं करूँगा. Let
let me put this as the output range, residual plot. So we will click all of them to make you understand. Okay, अभी डरना मत, ठीक है? यार कौन है यार, कितने बजे बोला था इन लोगों को? इन लोगों की घड़ी पाकिस्तान में, इन लोगों की घड़ी। ओके, नाउ हाँ बोलो। सर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस में सर डिफरेंस भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था सर, डिफरेंस भी बता दीजिए। यार देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है आपका, लेट्स राइट इट डाउन। भाई क्या कर रहे हो यार तुम लोग, तो भाग जाए यार। हाँ, so first of all let me write it down. When we come to correl versus regression, ओ यार कौन है? लाला खुद से थंडर, ठीक है? कैन यू सी ना? So first is there is यस सर। no dependent variable. Meaning when we did correlation here, यहाँ पे जब correlation किया था, जब हम करते हैं, so if we go here and we do correlation, कहाँ गया correlation? कितने से यहाँ पे there is no XY option, देख रहे हो? इनपुट रेंज मांगा है, जबकि यस सर। when we do regression, हाँ। here we are asking a Y range and X range. Okay, now this means Y and X plot अगर आपको पता हो, so we say the Y is equal to mx plus c बोलते हैं ना? So we are assuming that Y is a dependent variable and X is an independent variable. Understood? की हाल है यार, कुमारी ज्योति, सी हैश करो, सो जाओ। So basically we are studying the nature of relation. Yeah, I will come to that. I will come to that. Wait. So, Yes sir. there is no dependent variable. Okay, and we only study association. Here we study causation. जैसे weight and height. So they might be positively related. Now just because you are drawing them on y-axis, x-axis does not make any relation. ठीक है, please understand. Even in correlation में चार्ट तो आया नहीं ना, ध्यान से देखो। Correlation में we did not get any chart. Correlation में we got a number. That's Yes, all. sir. Correlation में we did not get anything. We just got this some number. हाँ, ये 0.94286. Now this does not talk anything. Now when we draw a scatter plot, let's go here. Yes sir. तो स्कैटर प्लॉट जब हम करते हैं तो उसमें एक को हम x लेते हैं, एक को हम y लेते हैं। वहां पर भी द मोमेंट वी डू दैट वी आर ट्राइंग टू से x is causing y. Simple. This is the biggest thing, association, causation. Therefore you see here we have a and b. What does a and b means? मतलब what does this equation and this equation signify? This and this, what does it mean? First tell me that. Why did I write this way? बताओ बताओ साक्षी जी। हेलो, आवाज जा रही है? ओ भाई
ये दो दो कुमारी ज्योति आ गई यार, क्या बढ़िया है. Sorry, let me screen. Till what point you heard? Sir, you were talking about the graph and the correlation was only having the value. हाँ, तो that is I was talking about, that there is no correlation only as value, whereas scatter plot and regression plots have y and x. Now, tell me about these two equation. This is equation 1 and this is equation 2. What's the difference between these two equations? So in the first equation, y is dependent on x, and in the second equation, x is dependent on y. Yeah, so please understand this. In correlation, there is only one r, small r. Here, this is called A, or also called byx. Yesterday you saw in the literature byx and bxy. Yes, no? याद है? Yes, sir. Yes. So Sir. coefficient b is the coefficient. So coefficient of, we just don't say what's the regression coefficient. If somebody asks you what's the regression coefficient, you always have to ask, sir, which is the independent, which is the dependent variable. Correlation में you don't ask that question. Again, as I told, weight and height might be increasing, but you don't know weight is increasing height or height is increasing weight, which comes to a second term, which is called spurious correlation. अब तुम लोग डरना मत. Suppose, let's put it this way. I am teaching, let's say कडियन जी हैं, हाँ साक्षी जी को पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है. She takes classes from me and let's take her average scores every week. चलो साक्षी जी, let's उम्मीद स्कोर इंक्रीज कर रहा है. कैन वी अज्यूम? हेलो, है कि नहीं है? यस सर. हाँ जी, मतलब या तो स्कोर डिक्रीज कर रहा है तो बता दो, वो भी ले लेते हैं. सर कुछ इंक्रीज होगा सर. तो साक्षी ने क्या किया? साक्षी ट्यूशन टाइम एंड साक्षी स्कोर, ठीक है. लेट्स पुट इट दिस वे, और लेट्स से ट्यूशन टाइम. सो हर दिन 1 घंटा जो भी है इसका स्कोर इंक्रीज हो रहा है, लेट्स धीरे धीरे हर दिन 1 घंटा 2 घंटा जो भी है. लेट्स पुट इट दिस वे. नाउ उसी ट्यूशन में कोई और किसको पकड़ते हैं? किसको पकड़े? आयुष अग्रवाल को पकड़ते हैं. तो आयुष का भी स्कोर इंक्रीज हो रहा है. उसका 4.5 था, उसका 6.5 था, 7.5 था, 8.5 था. नाउ अगर मान लो दोनों पढ़ रहे तो दोनों के स्कोर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है. लेट्स अज्यूम. हेलो, yes? Yes, sir. Yes, sir. So actually the score is increasing due to tuition time. Yes or no? Yes, sir. Now अगर ये डेटा मैं उनको ना दूं ट्यूशन टाइम का, और अगर मैं यही डेटा दूं, so can you say that कि यहां भी पॉजिटिव कोरिलेशन है? Yes, sir. और कोई महानुभाव होगा तो आगे कहेगा नहीं यार आयुष के नंबर ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज वो साक्षी के साथ पढ़ रहा है. कहेगा नहीं 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 नहीं, साक्षी के नंबर ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि वो आयुष के साथ पढ़ रही है. ओके? Yes, sir. Symmetric हो जाएगा. क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक. सर कोई भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते. It is not symmetric. It is not. Yeah. The word is. हाँ. The word is not symmetric. We say it as a spurious correlation. Actually उन दोनों में कोई correlation है नहीं. Which comes to a second term called partial correlation. अब ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, ये पढ़ाने के लिए हमें SPSS या फिर SAS वो यूज करना पड़ेगा.
वेयर व्हाट हैपेंस, जैसे ये अगर z ले लो, ये x ले लो और ये y ले लो, आर एक्स वाई इज स्पूरियस। ठीक है, जबकि आर जेड एक्स और आर, size. क्या कह रहे हो? The font size could increase, sir. हाँ हाँ, आर जेड वाई इज एक्चुअल। ठीक है, सो आर एक्स वाई Yes, sir. इज स्पूरियस, स्पेलिंग शायद गलत है स्पूरियस की, हाँ ये गलत है स्पूरियस, एंड आर एक्स वाई इज एक्चुअल। ठीक है, आर एक्स जेड एंड आर जेड वाई। नाउ हेयर कम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, डेटा कैन नॉट टेल यू अबाउट कॉजेशन अलोन। जैसे तुम्हारे पिताजी की सैलरी बढ़ रही है, तुम्हारी एज बढ़ रही है, ठीक है, हेलो, तो पार्शियल रिलेशन होगा, कोरिलेशन। नहीं वो ही है, पार्शियल होगा, लेकिन कुछ लोग महान होते हैं ना, कह देंगे रिसर्च का मतलब, रिसर्च सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, डेटा डज नॉट स्पीक एवरीथिंग। सो पापा की एज बढ़ रही है, बच्चे की, पापा के सैलरी बढ़ी है, बच्चे की एज बढ़ रही है, तो अगर बच्चे की एज बढ़ रही है तो पापा की सैलरी बढ़ेगी, या फिर अगर पापा की सैलरी बढ़ेगी तो एज बढ़ेगी। जिसकी सैलरी कांस्टेंट हो गई है उसकी एज कांस्टेंट हो जाएगी उसके बच्चों की, समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेंज थिंग्स, समझ रहे हो? तब सर किस क्वेश्चन में कौन सा टूल यूज करेंगे, ये भी तो फिर एक प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो यही है, देयरफॉर डेटा डज नॉट टॉक एवरीथिंग, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है। अब ये जो कॉजेशन वर्ड है, मैं तुम्हें बुरा मत मानना, ये जो वर्ड है कॉजेशन, कहाँ गया, ये जिंदगी है हम लोगों की। बीजेपी कहती है पेट्रोल के प्राइस इसलिए बढ़े, कांग्रेस कहती है इसलिए बढ़े, डेटा दे देंगे। ठीक है, साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स आया बिग बैंग से, कोई कहता आया है भगवान से। सो जो कॉजेशन की कहानी है वो तो एक फिलोसफिकल डिबेट है, व्हाट इज कॉजिंग व्हाट इज एक्चुअली अ फिलोसफिकल डिबेट। आई विल नॉट गो इनटू दैट। ठीक है, तो हम लोग इसमें अल्टीमेटली, जैसे पेट्रोल का प्राइस है, कुछ भी ले लो, व्हाट इज कॉजिंग व्हाट कुछ नहीं पता। कोई कहता है एक्स इज कॉजिंग वाई एंड वाई इज कॉजिंग एक्स, सो टाइम 1 में एक्स इज कॉजिंग वाई एंड टाइम 2 में वाई इज कॉजिंग एक्स। जैसे झगड़ा हो, जैसे मैं और तुम साथ साथ बैठे हैं, तो देयर को सिनर्जी इफेक्ट सुना है? सिनर्जी इफेक्ट, सर वो क्या है? सिनर्जी इफेक्ट ये होता है कि यार, ओके लेट्स पुट इट दिस वे, अगर मैं साक्षी को अलग पढ़ाता हूँ और आयुष को अलग पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है साक्षी का स्कोर आए 3 और फिर 4। तुम लोगों ने मैनेजमेंट सीखी नहीं है पीपीएम में, जरा लगता है, अलोन। अब उसके बाद अलोन आयुष को भी मैं पढ़ाऊँ, उसका भी स्कोर था 4 लगा लो, 6 लगा लो, 7, 8। लेकिन जब दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, when they study together, it's not just my teaching which is causing the increment, it is also presence of each other. समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Now, looking again back to this data, you can see the tuition teacher is motivated to teach nicely as the marks of the student increases. तुम ये भी कह सकते हो. Yes, sir. So we can say Sakshi's scores are causing tuition teachers to continue or something like that. So ये जो क्वेश्चन है X is causing Y, मैंने कहा ना फिलोसफिकल क्वेश्चन है और जिंदगी निकल जाती है इसमें. क्या है पूरी पॉलिटिक्स इसकी वजह से हुआ, कौन दोषी है, यू आर फाइंडिंग द कॉज. दोषी को अदोषी है थोड़ी ना आपने उठा के कर दिया. देयरफॉर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर कम्स. व्हाट आर टाइप 1 टाइप 2 एरर्स? We assume this to be mistake, we assume that to be mistake, that's all, and we try to minimize it.
समझ रहे हो? जैसे इफ यू Yes, sir. इफ यू गो टू कोर्ट्स इन इंडिया, व्हाट इज द बेसिक डिफॉल्ट? कन्विक्ट टिल गिल्टी, सॉरी गिल्ट इनोसेंट टिल गिल्टी और गिल्टी टिल इनोसेंट. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? Innocent is guilty. लेकिन मैरिटल केसेस में क्या है? गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट. नाउ That depends on gender. क्या कह रहे हो? Depends on gender. हाँ हाँ, वो अलग कहानी है, लेकिन मैरिटल केसेस का मतलब ही लड़के लड़के पे किया है, उल्टा तो होता ही नहीं है. उल्टा केस नहीं, उल्टा टॉर्चर कहा जाता है. अब वी विल नॉट गो इन दैट डिबेट बिकॉज दैट डिबेट इज ऑल्सो अज्यूमिंग अ डिस्ट्रेस ऑफ अ वुमेन is caused by a man, but a distress of a man is not caused by a woman. ये assumption है. तो causation जो है ये बहुत बड़े assumption पे है. इसमें आता है faith, जो मैंने तो पहले ही बोला. Where is your faith lies in causation? ये ब्रह्मांड एक उससे आया है. Ultimately it goes to the big original theory of theological debate. This universe is due to a chunk or this universe is some person. It's all matter of faith. Where do you put faith? And then you can have data to justify that fate. What is अपना base theorem? You have एक hypothesis, ठीक है? If you find an evidence in for that hypothesis, your probability of that hypothesis increases. है कि नहीं? Hello. Yes, sir. So Yes, sir. a priori hypothesis is the faith or the belief. जो मैंने तुम्हें belief वाला वीडियो दिया था. A priori hypothesis is faith. अब यही faith ही तो है. जैसे ही से gender, I am not going in that, but present status is helpline of women are there, helpline of everything, women are already there, and it assumption is that if they are tortured, it is by the male or by the in-laws. Now हो सकता है 15 साल बाद जो लखनऊ वाला वीडियो देखा था, लखनऊ वाला लड़की वाला, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ वैसा केस आए, फिर कोई कहे, फिर मैन एक्टिविस्ट आए और मैन वो आए, फिर एक रिवोल्ट हो, फिर कुछ कहानी आए, पर 150 साल बाद ये आए कि इट इज न्यूट्रल. लड़कियों के लिए जैसे बाथरूम टॉयलेट अलग अलग लड़के लड़के होते हैं, हेल्पलाइन भी लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग. बट अजम्पशन, अभी उनका अजम्पशन ये है कि लड़कियां लड़कों को इतना परेशान नहीं कर सकते. एंड वी कैन नॉट क्वेश्चन फेथ. दिस इज अ बिग डिबेट अगेन. फेथ की डिबेट बहुत बड़ी है. सुब्रमण्यम स्वामी पता है आपको? Yes, sir. This is a lawyer by profession. हाँ, सो ही एक्चुअली ऑल्सो जो राम भूमि जन्मभूमि का वो है. क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें कैसे पता है कि ये जो खुदाई है ये राम के अयोध्या के टाइम की है कि बाबरी के टाइम की है? यही कॉजेशन. तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इट्स अ बिग थिंग. और पूरी कहानी दुनिया में कॉजेशन फाइंड करने की है. व्हाट इज कॉजिंग व्हाट? मेरा झगड़ा हो रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज बैड. सुना ये? I am suffering because the class is not proper, or you are suffering because you are not doing it proper. So enough of philosophy, but it's a very very deep subject, causation. So anyways, coming back to statistics, we assume a regression. Therefore hypothesis का basis हमें नहीं पता. Hypothesis का basis आपका पर है. Data will justify your hypothesis y or x. Suppose you assumed that the age of a son is causing the salary increase. उसका एक कोफिशिएंट आएगा, और एज ऑफ द सैलरी ऑफ द फादर इंक्रीजेस एज द एज इंक्रीजेस, उसका एक कोफिशिएंट आएगा. अब उन दोनों कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी. एंड हियर वी विल कम ग्रेजुअली हाउ टू बी इंटरप्रेट रिग्रेशन रिजल्ट्स. बट समझ में आ गया कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस? पहले Yes, sir. एक बोलता नहीं है कारण, एक कारण बोलता है, और कारण जहां पर आता है वहां पे कहानी शुरू हो जाती है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द कॉज. ओके, लेट्स कम हियर. सो हमने ये रिग्रेशन किया था, इसमें इसको y डिक्लेयर किया था, x डिक्लेयर किया था. व्हाट इज x, व्हाट इज y, लीव दैट, यू कैन पुट इट एनीवेज. अभी हम स्टैटिस्टिक्स पर आ रहे हैं, ठीक है? अभी डरना मत. आई विल नॉट डू एवरीथिंग एक साथ. I will not do this right now. इसको भी मैं नहीं करूंगा. I will do this initially. So
this is coefficient. So when we regress y on x, the coefficient is 10. Okay, the y equal to Yes, sir. ax. So a is this, and the intercept, which is called x variable 1, is this. Okay, sorry, Yes, sorry, sir. I'm ulta. The intercept is this, the coefficient is this. Sorry, the intercept is 10 and the coefficient is -1. ठीक है? X variable 1. Yes, sir. हाँ, अब नाउ यू सी यहां पर भी नेगेटिव है कोरिलेशन. ठीक है, कोरिलेशन नेगेटिव है ना, Yes, sir. What negative? देयरफॉर कोफिशिएंट भी नेगेटिव ही होगा. Okay. ओके, नाउ कम्स द प्रोबेबिलिटी पार्ट. ये रिपीटेशन है, सो आई डोंट नो व्हाई दिस. आई विल डिलीट दिस, इसको उड़ा देते हैं, आता है तो कोई पता नहीं. यहां पे देखो, ये क्या, इसका क्या मतलब है. You should understand this by now. What does this mean? What does lower 90 upper 95 means? Confidence interval. अरे वो तो तुमने बोल दिया, उसका मतलब क्या है? कोई और क्या मतलब है इसका? एनीवन? भाई कोई तो बोलो यार, इतना तो बता दिया सैम्पल वो सब करके. दिस यू डोंट गेट इन योर नॉर्मल एक्सेल, नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉट टॉट टू यू, बट दिस कम्स हियर. इसका मतलब क्या है? हेलो, And the data which is above 95. हाँ, क्या मतलब? क्या बताओ, क्या कह रहे हो? So standard deviation से 95% के ऊपर का डेटा. अरे भगवान, और कोई? भाई मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया तो था बार बार उसका. भाई देखो, मीन जैसे हर सैंपल का मीन होता है, हर सैंपल का कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हो सकता है, Yes, sir, हो सकता है. और हर सैंपल का इंटरसेप्ट भी होगा. तो जिस तरह मीन अगर सारे इकट्ठे करो सैंपल्स के, तो वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे. Yes, sir. उसी तरह कोफिशिएंट सारे इकट्ठे करो सैंपल्स के, तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे. तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि भैया 95% मतलब इस रेंज 7.8 और 13.6 के बीच में ही आप जितने भी सैंपल लोगे इस साइज के, 95% सैंपल की रेंज ही है, 7.8 से लेके 13.6. ऑब्वियसली इन दोनों का जो मीन है दैट विल बी 10.7, बिकॉज वी टॉक अबाउट 95% सिमेट्रिकल टुवर्ड्स द मीन. ठीक है? हेलो सर इसको ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं, रिग्रेशन के फॉर्म में लाके. यार, इतना करना मत, कंफ्यूज हो जाओगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. डोंट टेल सर ग्राफ पे लिसन ग्राफ पे एक वो डाउट था. Listen. एक्स ऑन वाई एंड wait, listen, don't plot this, you have to understand this first of all. ठीक है? Now let me come here. Similarly here, that 95% of times if you want, we have this range. Now comes the second question. हर बार 95% की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, अपर और लोअर. यस और नो? यस सर. अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है तो रेंज ज्यादा होगी, कम होगी? हाँ. सो देयरफॉर
वी डोंट टॉक अबाउट दिस. वी तुमने सुना होगा वर्ड सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट करके, है ना? सुना होगा, नहीं सुना है? एनीवे सुन लेना बाद में. वी सी हेयर दिस p value is actually the error. I will not go in that right now, but this is what many people will say. If this p value is less than 0.05, which means your sample has error less than 0.05, which we talked about confidence level, then you can say this coefficient is good enough. Okay, क्योंकि ये रेंज तो हमेशा आएगी. This range will always give you some value, but this is good enough or not, you never know. समझ रहे हो? हेलो? नहीं. नो सर. नो सर. अरे ठीक है, अब इसको रोको, पार्क करते हैं. लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन somebody was asking. कोई पूछ रहा था y on x x on y. यस सर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में y on x एंड x on y, सर उसके ग्राफ को अगर हम उसकी प्लॉटिंग अगर एक ही ग्राफ पे करें तो इज इट रिक्वायर्ड कि वो आगे जाके क्रॉस करे या पैरेलल भी हो सकता है? नहीं, वो आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं? सपोज योर y on x, इधर देख लो, अभी तुम्हें दिखा देता हूँ. वी हैव दिस ग्राफ, ठीक है? नाउ व्हेन यू प्लॉट x on y, इट विल चेंज शेप कंप्लीटली. Opposite side, yes sir. So you cannot plot on same graph. You cannot plot on same area. Axis सेम ही नहीं रह सकती. Just because दोनों का x और y की values और units same है, does not mean you can do that. You have to plot them differently. Okay. Okay. You have to plot them Yes, sir. differently. You cannot do that. Now अभी इस बात में आएंगे, because आप लोग को अभी भी शायद, मेरे ख्याल से आई एम स्टिल श्योर यू हैव नॉट रेड दैट B5 का जो मैंने चैप्टर एरिया बोला था, दैट प्लीज रीड द कॉन्फिडेंस इंटरवल सेक्शन. यू हैव नॉट रेड दैट, देयरफॉर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. एनीवेज, लेट्स गो इट दिस हियर. ओके, सो व्हाट इज दिस? सो एनीवेज, इफ यू रिमेंबर, जो आप लोग बेसिक उसमें करते थे अपने 10th क्लास में, यू यूज्ड टू फाइंड y कैलकुलेटेड. मतलब you used to find beta, you used to find the intercept, and then you used to calculate y calculated. Yes or no? किसी को याद है? तो this is y calc. देखो, हमने असल में y, ये जो हमने जो दिए हैं blue points, these are the actual points. ठीक है? If you see, (1, 9, 1, 9, 2, 10. So blue points are the actual points. ठीक है? दिख रहा है? Yes sir. But we have assumed a linear regression. मतलब हमने assume किया कि ये straight line ही है. As we talked about curve fitting, that we are assuming linear regression का मतलब क्या है? You are assuming y is equal to a times x plus c, है कि नहीं? Yes sir है. So आपका जो वो y है वो ये है, ये स्ट्रेट लाइन में है, ऑरेंज डॉट सारे दिख रहा है? Yes sir. Now this orange y is your predicted y. Now here comes again जो हमने शायद बात करी, I don't know, मैंने आपके साथ करी है, IB के साथ करी है, but this is where we talk about accuracy of the regression line. कितनी accurate है? But sir, if we are having the actual y points, why do we require to have the predicted y? Baba, now the question comes, why you do regression? Let me ask you that.
let's get into that. If you have actual x, actual y, why do you do prediction? Why do you do regression? जरूरत ही क्या करने की, क्यों कर रहे हैं? Find the relationship. Why? आपके पास Nature actual of relationship or the To develop the nature or to standardize the things. अरे भाई आराम से बोलो भाई, आपके पास असली डेटा है, जब कुछ असली डेटा है तो क्या करना है आपको? सर असली डेटा है लेकिन चीजों को स्टैंडर्डाइज करना है. फॉर एग्जांपल मेरे पास है if x is equal to 1, y is equal to 9. If I want to know if x is equal to 1000, then Yes, what is the this value is of the y? point. How do I- This is the point. We want to know if a particular known x, a particular known y comes, then what will be the y, which is a dependent variable, if we have a different particular x for which we do not have a value. तो suppose कोई कहता भाई ये तो हो गया, चलो x से 1 से लेके 5 तक, 5 ही है ना, हाँ 6 तक है. What if x had been 8? X had been 8. Then you will go for the, you put predicted value में x is equal to 8 and you say this could have been, and you always say this could have been, you never say it is, because वो क्या होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं पता ना. This is a prediction. Causation is also prediction. Why do are we interested in causation? Because actually we want to control. हाँ भाई, पैसे कैसे बनते हैं? पैसे बनते हैं MBAs को हायर करके. अगर 50 MBA को हायर करेंगे तो पैसे बनेंगे. और यहीं पे गेम चेंज होता है. आई विल टॉक, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. वी कैन जस्ट टॉक अबाउट रिग्रेशन मल्टीपल क्लासेस, बिकॉज इसकी इम्प्लीकेशन बहुत हैं. ठीक है. सो वी आर अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप which many a times is not. Okay, so to predict unknown y for a known value of x which we can, हमारे हाथ में x का कंट्रोल है ना. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? we can control x, yes or no? Yes, sir. Independent x means we have more control over x as compared to y, because y is independent on something which is x, so we have more control on independent parameter. So when we change x, then there comes a unpredicted value, predicted value of y. समझ में आया? Yes, sir. साक्षी जी आपको आया? हाँ भाई, है अभी की गई? तो गई तो anyways. So let's coming back to same point. Now where we comes कि भाई how do we know this straight line is better? जैसे ये एक straight line है, ठीक है, we could have drawn another straight line, yes or no? Yes, sir. Now therefore we say this is the best fitted line, this line. बेस्ट फिट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ये पूरा 100% बताएगी, लेकिन जितने भी पॉसिबल लाइन हम ड्रॉ कर सकते थे इस स्ट्रेट लाइन को बताने के लिए. कौन है? अल्लाह. और ठीक है भाई, ठीक है, कौन ना, ठीक है. सो दिस इज द बेस्ट लाइन. Okay, yes or no? जैसे again let me get back to this. Suppose I just give you this. मैं आपको ये दे देता, ठीक है. ओके, आपके पास एक्सेल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, मान लो. Okay, agreed? Yes, sir. Okay, sir. So what you would have done, you would have drawn one line like this, one line with this, one line with this. Multiple lines आप draw कर सकते थे?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now, which one is better? Which one is appropriate? I am not saying that you have found the appropriate, but how you can understand which is appropriate? Which is more closer to the maximum number of the points. Ah, yes, that's good. Therefore, we comes to a concept of error. So हम लोग क्या करते हैं? हम लोग निकालते हैं ये निकालते हैं विच इज नथिंग, विच इज पावर दिस माइनस दिस बाय 2. ठीक है? ओके, ऑल दिस इज एरर. दिस इज एरर ना, अल्टीमेटली एरर ही है ना, एरर स्क्वायर. यस और नो? Yes, sir. So Yes, ultimately you must have heard this term. Have you heard this term? No, sir. ये सुना है? भाई पता नहीं, मैंने तो अपने 11वीं 12वीं में ये सब सुना था. Yes, sir. ये सुना है? Yes, sir. So Yes, sir. हाँ, so this is square, this is square error, this is square error, this is square error, this is square error, this is error. Y minus y calc is error. Please understand, y minus y calc is error. तो this is error square. Now आपके पास जैसे ये आया, let's go to different sheet. सो अब हम क्या कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि ये सारे फिगर्स कैसे प्लॉट होते हैं. मतलब वी डू नॉट नो एक्चुअली कि ये स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी. ठीक है? ओके, इज दैट फाइन? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा, अब हमें ये दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है नेगेटिव स्लोप के साथ. कैन वी से दैट? Yes, sir. नाउ लेट्स अज्यूम समथिंग कि लाइन की कुछ स्लोप होगी, कुछ इंटरसेप्ट होगा. Yes, sir. होगा. तो क्या होगी स्लोप? लेट्स पुट इट द फर्स्ट लाइन की स्लोप. कुछ भी हो Sir, y2 minus y1 upon x2 हाँ minus बता x2. दो यार. Sir, 10 minus 5. डिवाइड बाय 1. Yes, sir. पॉजिटिव थोड़ी ना होगी स्लोप, Sir, positive नहीं होगी. तो माइनस Sir, माइनस 5 स्लोप हो गई. ठीक है, चलो अज्यूम कर लिया. अरे 10 माइनस 5 क्यों किया तुमने? ये 10 है, 7 minus 5 minus 7. 5 माइनस 7. Yes, sir. 5 minus 7. तो फिर नेगेटिव आते हैं. अरे मेरे भाई, अगर 5 माइनस 7 करेंगे तो डिवाइड बाय 3 भी तो करेंगे. क्या कर रहे हो? अरे यार तुम लोग, x1 होगा. क्या होगा? सर फॉर एग्जांपल मैंने एक ही 10 वाला पॉइंट लिया, 10 और 2 वाला, और एक पॉइंट लिया 5 एंड 3 वाला.
हाँ तो अगर तुमने सर, 5 नहीं इसमें हो जाएगा 5 माइनस 10 हाँ और डिवाइडेड में 3 माइनस 2। भाई भाई 5 को 6 है ना, 10 माइनस 5 कर रहे हो, मतलब तुम इसकी बात कर रहे हो यहाँ से कर रहे हो पॉइंट से। एनीवेज चलो वॉट एवर वैल्यू इज -5, लेट्स से पुट इट दिस वे, कुछ इंटरसेप्ट आएगा सबसे, लेट्स सी 3। यहाँ पे हमने नहीं सर -5 नहीं -4 लेते हैं और इंटरसेप्ट लेते हैं 8। कोई कहेगा नहीं भाई -5 ही लेते हैं लेकिन इंटरसेप्ट लेते हैं 1। ओके, दीज 3 डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है, यस और नो? यस सर, राइट है। So what is this? This is this multiplied by this plus this. Can we say that? सही है? Yes or no भाई लोगों? हेलो, हाँ सर ठीक है, y इज इक्वल टू भाई तुम अकेले ही बोल रहे हो, बाकी सब को क्या हो गया? भाई देखो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये पीएचडी वालों को भी नहीं आता है। भाई सीआर कितने है दूसरा जिसने मुझे सुबह कॉल किया था, कोई जयसवाल करके था। Yes, sir. आ रहा है समझ? ये तुम्हारे जो एक बंदा बोल रहा है उसी को समझ में आ रहा है। तो आधे दूर तक समझ आए और फिर उसके बाद उसके बाद मैं टीवी देखने लग गई। नहीं सर, तो इधर ही हूँ। तो यार वो बोलते जा रहा है तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव बन के, हाँ हाँ, तो तुम मुझसे समझोगे क्या? या तो ऐसा कह दो सर एक बंदे को समझा दो, हम साथ उसको पकड़ लेंगे बाद में और वो हमको समझा देगा, तो मेरा टेंशन भी कम हो जाएगा। वैसा करना है तो बोलो, फिर मैं उसी को पढ़ाता हूँ। सर उसे ही बस समझ आता है, बाकी क्लास को कहाँ समझ आती है सर। आधे वो बस हाँ बोल देता है फिर। काहे को हाँ बोलते हो भाई, काहे को झूठ बोलते हो? और मैं पकड़ूं बैठ के क्या ऐसे तुम्हारे? तो वो तुम्हें तुम्हारा गला पकड़ रहा है क्या? तो उसने तुम्हें वो गन पॉइंट पे रखा है, किसी ने ना बोला तो उड़ा दूंगा। सबको हाँ बोलना जरूरी। इतनी उसकी हिम्मत था। चलो उसकी हिम्मत नहीं बेचारा। तो तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग क्यों नो बोलते हो? जैसे किसी ने बोला बताओ रिग्रेशन कोड, ने बता दिया। पता नहीं यार तुम लोग। सर हाँ वो फ्लो चलते रहते हैं ना, तो सर इसलिए फिर हम लोग सोचते हैं कि बाद में खुद से एक बार ट्राई कर लेंगे। वेरी गुड। और बाद में हम नेटफ्लिक्स देखेंगे, फिर हम एग्जाम के टाइम पे जागेंगे। एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट मी नॉट गेट इनटू दैट। वीडियोस आर देयर फॉर रिकॉर्डिंग, यू वांट टू हियर कम दैट, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इन दिस वे वी विल गेट मल्टीपल वाई कैरेक्टर्स। यहाँ पर भी आएगा, ये वैल्यू भी आएगी, ऐसी वैल्यूज आएंगी। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट इट राइट नाउ। इसको थोड़ा मैं एक्सेल लगा रहा हूँ तो डरना मत। Excuse me, please. Achha, I was wrong. I should have done this. अरे यार बड़ा मुश्किल है ये। कितने अच्छे बच्चे हैं। अमेरिका में होते ना तो कहते हैं प्रोफेसर वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, वी आर पेड यू, यू सी यू गॉट टू एक्सप्लेन टू अस। B6 got it, mistake यहाँ हो गई है।
ठीक है, ये आया y क्या है ये सब ओके। नाउ वी विल कैलकुलेट एरर मॉडल, एरर स्क्वायर मॉडल 1, एरर स्क्वायर मॉडल 2, एरर स्क्वायर मॉडल 3। ओके, समझ रहे हो नहीं भैया? तो y3 मॉडल्स, why 3 models? Because we assumed we want to understand which gives the least error. हमें पता ही नहीं है सही कौन है। ओके, लीस्ट स्क्वायर वाला। हाँ, तो लीस्ट स्क्वायर जिसका आएगा उसको हम ले लेंगे, बस हमें पता ही नहीं कौन सा सही कौन सा वो है। तो वो क्या एक्स्ट्रा लाइन हो जाएगी अपनी? वो एक्स्ट्रा लाइन नहीं हो जाएगी, दैट विल बी द लाइन अमंग दीज 3 विच वी विल प्रेफर। ओके, आई एम नॉट सेइंग एक्स्ट्रा लाइन। So according to this gives us the least square in these 3 lines. Now इसी तरह क्या होता है, जैसे कोफिशिएंट स्लोप ये है और इंटरसेप्ट ये है, they will be multiple, the program will do multiple estimations, okay, and then they will say the best line of fit is having the least error is having coefficient this and intercept this. समझ में आ रहा है? सर ये लास्ट वाली लाइन एक बार रिपीट करना। सर हाउ यू इंटरप्रेट वो फिर से समझा दीजिए। क्या एक आदमी किसने बोला, क्या फिर से समझा दीजिए? सर ये जो लास्ट वाली लाइन आपने बोला ना, ये एक बार रिपीट करना। सो जैसे यहाँ पर वी सेड लेट अस 3 टेस्ट 3 मॉडल्स, ठीक है, हमने अपने आप अप्रोक्सीमेशन किया कि लेट्स से स्लोप इज दिस एंड इंटरसेप्ट इज दिस, वी डिड आवरसेल्फ ना। हेलो, यस सर। बट द कंप्यूटर हैज टू द पावर टू चेंज द इंटरसेप्ट स्लोप इटसेल्फ और नॉट, यस और नो? वो मल्टीपल स्लोप और मल्टीपल इंटरसेप्ट के लिए कैलकुलेशन कर सकता है। हाँ सर। जैसे उसको ये पता लग गया, जैसे हम मान लो हम ही कंप्यूटर है, हमने ये 3 मॉडल लिए, फिर हमने कहा कि भाई आंसर ना इसके पास है, अब -5 और -5 दोनों हैं, ये मतलब हमारे को थोड़ा और चेंज करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हो सकता है -4 और +5 ले, -4 +3 लें, इस तरह करके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस कंप्यूटर ट्राई करता है। और फिर ये लाइन जो आती है, जो आपकी ये वैल्यूज आती हैं, ये आती हैं बेस्ट लाइन ऑफ फिट, कि भैया हमने जितने सारे मॉडल ट्राई करने थे, सारे सी देख लिए, सारे एम देख लिए, सबसे कम एरर इसमें आता है। देयरफॉर अगर आप इसको फिर से रन करोगे ना, आपका कोई और रन करेगा, तब आएगा 10 -7 3 4 5 -1 1 5 समथिंग, ठीक है, पास ही आएगा, लेकिन हर बार रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आता है क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब समझ में आया? यस सर। So therefore regression is an estimation, linear regression, that you are assuming y is a linearly dependent on x, okay। अब कोई मुझसे कह सकता है सर नहीं सर आपने ना ये गलत लिया है, लेट्स गो टू दिस शीट, ये गलत है सर, ये एक साइन वेव है, ये कुछ और वेव है, ठीक है, ठीक है, वो ये कह सकता है सर ये कुछ और है, तो वो लीनियर रिग्रेशन ना लेके ही कैन ऑल्सो गो फॉर नॉन लीनियर, जिसने आपने सुना होगा, he can say we have a non-linear regression। ये स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता, ये कुछ और है, समझ रहे हो? हेलो, यस सर। तो ये हम लोग कर्व फिटिंग पे जा रहे हैं, अभी हम कर्व फिटिंग पे नहीं जाएंगे। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कर्व फिटिंग, दैट विच कर्व्स फिट द बेस्ट, हाउ डू वी अंडरस्टैंड,
ठीक है, देयरफॉर आई वाज ट्राइंग टू गो फॉर आर बिकॉज उसमें सारे तरह के कर्व्स होते हैं, बट एनीवे ठीक है, तुम लोग पहले सिंपल ही सीखो, हम लोग बाद में देखेंगे। एनीवेज ओके, सो नाउ कमिंग बैक, this is linear regression, it's not regression. We always say we did a linear regression, simple linear regression. ठीक है, and we will talk about this more. Okay, class CRs, when you will have joint class you will tell me. We can have extended classes on Saturday also. ठीक है, I will be off at least for 3-4 days. और अगर ये extended class हमेशा के लिए हो जाए तो उससे अच्छा तो कोई नहीं है, बार बार मुझे 2 क्लास लेनी ही नहीं पड़ेंगी। ठीक है, और आप लोग की भी दूरियां कम होंगी। कहाँ गए क्लास सीआर, है क्या यहाँ पास में? हेलो, यस सर। ठीक है, यू कैन टॉक टू अनदर, ठीक है, एंड देन लेट मी नो। अभी तो Yes, 12 बज sir. गए हैं आपके, मतलब सॉरी क्लास के, तो लेट्स वी आर एंडिंग दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सर। हाँ।